हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था हाउ टू फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड वी गॉट दैट simply if we consider that a and b are the two vectors and their dot product is expressed mathematically as this is mod a mod b cos theta, or simply we can write this is a b cos theta, where this mod is simply signifies that this is magnitude of vector a. Okay, and while we define like this, it is the product of magnitude of one vector and the magnitude of second vector along the direction of first vector, or also we can sometimes say that it is the product of magnitude of two vectors and cosine of the smaller angle between them. तो ये था एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन। अभी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कैसे if we instead of vectors a and b, if we simply consider the unit vectors. Okay, so dot product in terms of unit vectors. Okay, unit vectors. Here we'll be considering the unit vectors like I, j and k, and we'll determine their product values. Okay, so let's see. So first here we will be considering I cap dot I cap. Okay, तो जैसे कि magnitude of any unit vector is 1, so let's first write down like this. This is magnitude of mod I, this is mod I. जैसे कि यहाँ पे अगर a डॉट b होता तो यहाँ पे mod a mod b, यहाँ पे instead of a and b we are replacing these values by I and then cos theta. Now what will be the angle between I and I? You see, जैसे कि these are three axes. This is x-axis, this is y, this is z. Now along x-axis the unit vector is I cap, along y-axis the unit vector is j cap, and along z this is k cap. Now you are asked to find the angle between I and I. जैसे कि I के साथ I का एंगल कितना है, जैसे कि अगर एक एक्सिस है, एक यूनिट वेक्टर है in this direction, the second unit vector is also along the same direction, so you can say that the angle between them is 0, right? So this is cos 0 degree. Now magnitude of I, that is 1, then here another one, then cos 0, this cos 0 degree is also equals to 1, so 1. तो ultimately result क्या आ गया, this is equals to 1. now j dot j, okay, j dot j, तो इसका भी एक ही हालत होगा जैसे कि magnitude of j then cos angle between j and j, that means angle between same unit vectors, तो क्या हो जाएगा, ये भी equals to 0, तो ultimately इसका वैल्यू क्या निकलेगा, this is also equals to 1. now let's consider k dot k. in this case also this is mod k, again mod k cos angle between unit vector k मतलब angle between same two vectors, this is also equals to 0 and the ultimate result equals to 1. so we can say that I dot I equals to j dot j equals to k dot k equals to 1. okay, तो ये रहा एक नोटेशन, ये हमेशा मैथमेटिक्स करते वक्त न्यूमेरिकल्स करते वक्त यूज़ किया जाएगा. दिस इज़ वन नोटेशन. नाउ विल कंसिडर डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स, जैसे कि आई के साथ जे के साथ के के साथ आई. ठीक है, अभी एक ऑर्डर में चलेंगे. ओके, चलो देखते हैं. आई डॉट जे. ओके, आई डॉट जे. तो पहले मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे एंड cos angle between I and j. This is I and this is j. What is the angle between these two? This is 90 degree. So let's put it 90. Now
magnitude of this first unit vector, this is 1, magnitude of the second unit vector, this is also 1, and this cos 90 equals to how much? This is equals to 0. So 0. So ultimate result equals to how much? This is 0. Now just if we find the reverse, that is instead of I dot j we'll be using j dot I. Let's see what happens. Okay, so here the unit vectors are j dot I. Okay, so magnitude of j, magnitude of I, then cos, angle is the same, this is equals to 90 degree. So in that case 1 and this is 0, so ultimate result equals to 0. So here we see that I dot j is equals to j dot I, मतलब a dot b और b dot a दोनों का वैल्यू सेम ही है, यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस नहीं दिखाई देता है, पर शायद ऐसा भी हो सकता है, बाद में दिखाई देगा कि इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट्स विल फाइंड दैट a डॉट b नॉट इक्वल्स टू b डॉट a, सॉरी a क्रॉस b नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बाद में देख लेंगे वो बात क्या है। तो फिलहाल तो हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है कि आई डॉट जे इज इक्वल्स टू जे डॉट आई। ठीक है, जैसे सिमिलरली वी कैन से दैट जे डॉट के, वो भी देख लेते हैं। जे डॉट के इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ जे, मैग्नीट्यूड ऑफ के कॉस, अभी एंगल बिटवीन जे एंड के, ये ऐसे तो देखने में तो ये बहुत बड़ा एंगल लग रहा है, बट प्रैक्टिकली ये क्या है, ये एक ऑर्थोगोनल सिस्टम, तो किसी भी तीन एक्सिस के अंदर हमेशा एंगल 90 डिग्री रहता है। जैसे कि मैं और एक बार दिखा दूं, दिस आर 3 मार्कर्स। ठीक है, तो इसके साथ एंगल कितना है, दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, अभी इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में एंगल 90, इन बिटवीन दिस टू दिस इज 90 एंड इन बिटवीन दिस टू दिस इज ऑल्सो 90। तो हमेशा ये 90 डिग्री रहेगा किसी भी दो एक्सिस के बीच में। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 90। तो यहाँ पे भी रिजल्ट क्या आ जाएगा, दिस इज 0। यहाँ पे जैसे कि k डॉट j, ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ k, मैग्नीट्यूड ऑफ j cos 90 डिग्री एंड द रिजल्ट इज 0। ओके, सिमिलरली वी कैन शो दैट दिस I dot j, j dot k, k dot I, ओके, k dot I। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ k, मैग्नीट्यूड ऑफ I cos, in between these two this is also 90 degree, okay, cos 90 and which is equals to 1, sorry this is 0। Similarly we can say this I dot k। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ I, मैग्नीट्यूड ऑफ k cos 90 which is also equals to 0। तो अल्टीमेटली ये सब करने के बाद हम लोगों को जो कंक्लूजन ड्रा करना है, कंक्लूजन जो रिजल्ट्स मिल रहा है, तो अल्टीमेटली हम लोग ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जैसे कि हम लोगों को मिला है कि I डॉट I equals to j dot j equals to k dot k equals to 1। साथ ही साथ ये भी मिल गया, तो ये इसको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, और मिला है कि I dot j equals to j dot k equals to k dot I इक्वल्स टू 0। और अगर रिवर्स ऑर्डर में बोलो तो j डॉट I इक्वल्स टू k डॉट j इक्वल्स टू I डॉट k, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। और इंटरेस्टिंगली हियर यू सी दैट I डॉट j इक्वल्स टू j डॉट I, मतलब ये दोनों सेम हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें
याद रखना पड़ेगा। एक्चुअली दिस आर वेरी सिंपल थिंग्स। पहले पहले ऐसा होता है कि डॉट और क्रॉस में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं स्टूडेंट, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ ओके हो जाएगा। नाउ विल सी डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ components, rectangular components. Okay, dot product in terms of rectangular components. Okay, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब क्या है? जैसे कि कोई भी वेक्टर कंसीडर कर लो, दिस इज वेक्टर ए, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब जैसे कि हम लोगों ने वेक्टर को स्प्लिट किया था इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट एक्सेस, तो ये जो अलग अलग ए एक्स ए वाई ए जेड मिलता है, दिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए। मतलब ये बोला था पहले भी, ठीक है। लेट ए इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप. So x, ay, az, these are the components, rectangular components of vector A, and the other vector is b vector, and the components are bx I cap, by j cap plus bz k cap. Okay, now we have to find dot product of these two vectors. Okay, तो शुरू करते हैं. Therefore a dot b equals to, पहले दोनों वेक्टर्स को लिख लेते हैं, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप. ओके, डॉट बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप. ओके, तो जैसे कि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे 3 टर्म्स है, यहाँ पे भी there are 3 terms. So first we will consider this term, and using this we will multiply individually these 3 different terms. Okay, जैसे कि ये पहले वाला टर्म के जरिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड वाला टर्म के जरिए इन तीनों को मल्टीप्लाई, देन थर्ड वन ये तीनों. ठीक है, तो पहले ए एक्स आई कैप के जरिए इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है. तो क्या मिलेगा, ए एक्स आई कैप और डॉट बी एक्स आई कैप. ओके, प्लस ए एक्स आई कैप डॉट बी वाई जे कैप प्लस ए एक्स आई कैप डॉट बी जेड के कैप. ठीक है, ये बना सिर्फ पहला वाला टर्म के लिए. ठीक है, बाकी चलता रहेगा. जैसे कि ए वाई ए वाई जे कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप डॉट बी वाई जे कैप प्लस ए वाई जे कैप डॉट बी जेड के कैप. ये रहा सेकेंड टर्म के लिए. Now we also have to consider this third term. तो ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी जेड के कैप. तो अभी अभी जो आइडेंटिटीज हमने देखा है, बस ये सब आइडेंटिटीज को यहाँ पे अप्लाई करना है. जैसे कि देखो, these are 2 स्केलर टर्म्स. ओके, सिंपली इन दोनों को बाहर लेके आ सकते हैं हम लोग. तो लिख लेते हैं ए एक्स बी एक्स और बीच में रह गया आई डॉट आई. ओके, प्लस यहाँ पे ए एक्स बी वाई, बीच में रह गया आई डॉट जे, प्लस यहाँ पे ए एक्स बी जेड आई डॉट के प्लस यहाँ पे ए वाई बी एक्स आई डॉट जे डॉट आई. ओके, तो सभी को लिखना है, प्लस ये ए वाई
बी वाई जे डॉट जे, ठीक है, प्लस ए वाई बी जेड जे डॉट के, प्लस ए जेड बी एक्स के डॉट आई, प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे, प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के, ठीक है। तो यहाँ तक रहा। नाउ देखो बस बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आई डॉट आई, जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि आई डॉट आई इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। फिर आई डॉट जे इज इक्वल्स टू व्हाट, अभी तो देखा था, दिस इक्वल्स टू 0। तो ये 0 हो जाएगा, मतलब पूरा की पूरा ये टर्म 0 हो जाएगा। आई डॉट के मतलब इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स कोई भी डिफरेंट दो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट हमेशा 0 ही आ जाएगा। तो ये भी इक्वल्स टू 0। दिस इज जे डॉट आई, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। हियर वी सी दैट जे डॉट जे, हियर जे डॉट जे इज इक्वल्स टू 1, तो ये वाला टर्म रह जाएगा, ठीक है। तो जो टर्म रहेगा वो सबको लिख लेते हैं। तो पहले ये आ रहा है ए एक्स बी वाई, और आई डॉट आई ये तो इक्वल्स टू 1, तो ये तो खत्म हो गया, 1 हो गया इसका वैल्यू। नेक्स्ट आ रहा है ये, दिस इज ए वाई बी वाई और ये जे के 0, के आई 0, के जे 0, बाकी रहेगा ये के डॉट के इज इक्वल्स टू 1। तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, दिस इज ए जेड बी जेड। तो एक्चुअली क्या होता है, ये एक नोटेशन है, ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन, ये बार बार तुम लोगों को मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस ये इस आइडेंटिटी को याद रखना है कि अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तो रिजल्ट जो आएगा दिस इज इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत लिखा है मैंने, हाँ ये ए एक्स बी एक्स होना चाहिए। दिस इज ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ये एक आइडेंटिटी है। सो दिस इज ऑल अबाउट डॉट प्रोडक्ट्स, ठीक है। Now we'll see what are the properties of dot products. Okay. So the properties of dot products. Okay. तो पहले पॉइंट ये है, this is commutative, दैट इज जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट इज इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसका मतलब ऐसा दैट इज ए डॉट पी प्लस सी, ठीक है। तो हम लोग इंडिविजुअली इन ये सब टर्म्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड इन डॉट प्रोडक्ट्स, सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। थर्ड पॉइंट इज व्हेन टू इक्वल वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड, ठीक है, करके देख लेते हैं। लेट वी आर मल्टीप्लाइंग वेक्टर ए विथ ए वेक्टर, मतलब एक सेम वेक्टर को उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है। सो इन दिस केस वी विल बी गेटिंग दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा? इस जो ए वेक्टर है उसी के साथ ए वेक्टर का एंगल, मतलब सेम वेक्टर के साथ सेम वेक्टर का एंगल कितना होगा? ऑब्वियसली इट इज 0। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ए, सेकेंड वन यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड ए, और कॉस थीटा कॉस 0 इक्वल्स टू व्हाट 1। तो अल्टीमेटली क्या मिल रहा है? दिस इज ए स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं व्हेन टू इक्वल वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड their resultant is equal to the square of
magnitude of either vector. Okay, now we will consider if two equal vectors, now when two perpendicular vectors, when two equal तो बोल नहीं सकते, when two perpendicular vectors are multiplied, जैसे कि a डॉट p, ठीक है, these are two vectors, और जैसे कि मान लो this is vector a, okay, and b vector is like this is b vector. Now what is the angle between these two? जैसे कि a को अगर रिप्लेस करके मैं यहाँ पे बिठा दिया, then we will find that, जैसे कि मान लो this is vector a, so the angle between them is 90 degree. Okay, so in this case we will be getting magnitude of a, magnitude of b, cos angle is 90, right? तो यहाँ पे a b cos 90 equals to 0, so ultimately resultant is equals to 0. So when two vectors, when two perpendicular vectors are multiplied, resultant is equal to 0. So these are four properties of dot products. तो this is all about dot product. अभी बस न्यूमेरिकल्स कुछ सोल्व करना है, ठीक है, PDF से वो अभी देख लेंगे, ठीक है।